ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵੀਗਨ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਵੀਗਨ ਡੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1979 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੰਧੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? IIT ਬੰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧੂ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਹੈਲਪ ਓਵਰਕਮ ਫਰੋਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਮੀਲੀਆ ਰੋਮਾਗਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਐਮੀਲੀਆ ਰੋਮਾਗਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 93ਵਾਂ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸੀ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਲੀਮ ਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਅਲੀਮ ਦਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਮਪਾਇਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਮੋਸਟ ODIs ਐਜ਼ ਫੀਲਡ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 210 ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਰੂਡੀ ਕੋਟਰਜ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਮਲ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਮਲ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ। ਆਥਰ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ? ਪੈਂਡੇਮੋਨੀਅਮ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹਾਰਡ ਕਵਰ। ਪੈਂਡੇਮੋਨੀਅਮ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹਾਰਡ ਕਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ CCI। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਪਰੂਵਸ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬਾਏ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? CCI ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਦਿੱਤਿਆ ਪੁਰੀ ਜੋ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਲੇ ਗਰੁੱਪ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਅਦਿੱਤਿਆ ਪੁਰੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਂਡਰਾ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਡਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਗਰ 2। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਗਰ 1 ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ INS ਕੇਸਰੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਗਰ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ
INS इरावत गई है, INS इरावत गई है किहड़ी कंट्रीज़ दे विच? सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और एरिट्रिया। सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और एरिट्रिया। ठीक है। अगर कैपीटल्स की गल करिए, कैपीटल्स आप कल कहा सी कि कमेंट बॉक्स के दस्यो, काफ़ी घट बच्चे ने जिहड़े आंसर दिंदे ने कमेंट बॉक्स के। आंसर जरूर दिया करो कमेंट बॉक्स के। अगर आप गल करते हैं साउथ सूडान की, तो साउथ सूडान की कैपिटल की है? साउथ सूडान, सूडान, इस तो इलावा जिबूती और एरिट्रिया, ये 4 कंट्रीज़ आप डिस्कस कीतियां सी। इन्हां दी कैपिटल्स की अगर आप गल करिए तो सूडान की कैपिटल है खार्तूम करंसी पाउंड। साउथ सूडान की कैपिटल सी साउथ सूडान की कैपिटल अगर आप गल करिए जूबा। साउथ सूडान की कैपिटल सी जूबा, करंसी पाउंड चलती, करंसी सेम है। जिबूती की गल करते हैं जिबूती सिटी, जिबूती सिटी, जिबूती की कैपिटल है और फ्रैंक इत्थे करंसी चलती है। इस तो इलावा एरिट्रिया कैपिटल असमारा चलती है, असमारा। और नफका आई थिंक इत्थे करंसी चलती है, एरिट्रिया। नेक्स्ट है इंडियन NSDC, नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी, न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। इसने ब्रिटेन एशियन ट्रस्ट ਦੇ ਨਾਲ पार्टनरशिप की है, ਜਿਹੜੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। ब्रिटेन एशियन ट्रस्ट किस दे ਲਈ? टू लॉन्च स्किल इंडिया इंपैक्ट बॉन्ड। स्किल इंडिया इंपैक्ट बॉन्ड ਨੂੰ लॉन्च ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ लॉन्च ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ पार्टनरशिप की गई है। असम की गल करते हैं, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सैनोवाल द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया इंडिया इजराइली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया इजराइली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। कित्थे किया गया है? खेतरी, नियर गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी के नेड़े खेतरी प्लेस है, उत्थे इंडिया इजराइली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। जॉन मैगाफुली, जॉन मैगाफुली ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ अपॉइंट किया गया तंजानिया का, री इलैक्ट किए गए हैं एज ए प्रेजिडेंट ऑफ तंजानिया। तंजानिया कैपिटल डोडोमा है, करंसी शिलिंग चलती है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू द्वारा इनोग्रेट किया गया सी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई SAI का एक रीजनल सेंटर जीरकपुर पंजाब के इनोग्रेट किया गया, जीरकपुर पंजाब दे विच। छत्तीसगढ़ की गल करते हैं, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल द्वारा फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च की गई। फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर टैकलिंग मैल न्यूट्रीशन, मैल न्यूट्रीशन को कंट्रोल करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ द्वारा ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम को भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से आर दोराय कन्नू, आर दोराय कन्नू, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट है तेलंगाना की गल करते हैं तो के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ने तमिलाय सौंदराजन, तमिलाय सौंदराजन पहले वूमेन और पहले गवर्नर ने। चीफ मिनिस्टर द्वारा रायतू वेदिका स्कीम, रायतू वेदिका स्कीम फार्मर्स के बेनीफिट के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर मिनीएचर ट्रेन, इंडिया की पहली सोलर पावर से काम करने वाली मिनीएचर ट्रेन लॉन्च की गई है वैली टूरिस्ट विलेज केरला दे विच, वैली टूरिस्ट विलेज केरला दे विच लॉन्च की गई है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ बैंड सेल एंड परचेज ऑफ फायर क्रैकर्स, बेसिकली पटाके अगर दिवाली के टाइम के पटाकियां की बनाना बेचना और पूरी तरीके नाल बंद कर दिता है। डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, जितेंद्र सिंह उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने इन्हों द्वारा मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान जम्मू एंड कश्मीर के इनोग्रेट किया गया। मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान को जम्मू एंड कश्मीर के इनोग्रेट किया गया जितेंद्र सिंह द्वारा। नैक्सट स्टैटिक पोर्शन के आप अवॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट आया कि अवॉर्ड आप स्टैटिक के क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली स्टैटिक पार्ट के आप ऐसी चीज़ा रिपीट करते हैं जिहड़ी चीज़ा एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा चांसिस होंगे ने। ठीक है, हुण अर्जुन अवॉर्ड्स ने या अगर आप गल करिए स्पोर्ट्स अवॉर्ड की तो इन्हों के पक्का क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पूछा ही पूछा जाएगा,
इस करके डिस्कस कर रहे हैं। कोई गल नहीं, अगर तुसीं चाहते नैशनल पार्क्स कहा सी उस बच्चे ने तो कोई गल नहीं, नैशनल पार्क डिस्कस कर लांगे। इस तो बाद नैशनल पार्क शुरू कर लांगे। अर्जुन अवार्ड अज खत्म हो जाएंगे अपने अर्जुन अवार्ड, कल तो आप नैशनल पार्क डिस्कस कर लेने, कोई गल नहीं। सॉरी कल नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हर एक अवार्ड आप 2 दिन डिस्कस करते हैं, अज डिस्कस करेंगे। इस तो इलावा यही अवार्ड कल डिस्कस कर लांगे, परसों तो आप अपने नैशनल अवार्ड शुरू नैशनल पार्क शुरू कर लांगे। एथलैटिक्स दे विच दूती चंद नूं एथलैटिक्स दे लई अर्जुन अवार्ड दिता गया। शिवा केशवन विंटर स्पोर्ट्स दे लई। सुरेश नारायण जादव पैरा स्विमिंग दे लई। संदीप पैरा एथलैटिक्स दे लई। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग दे लई। और सावंत अजय आनंद इक्वेस्ट्रीयन दे लई इन्हां नूं की दिता गया अर्जुन अवार्ड दिता गया। टोटल 27 अवार्ड दिते गए ने, 7-7 करके 3 बार आप डिस्कस किए हैं, 21 हो गए तो 6 वे टोटल 27 अर्जुन अवार्ड्स दिते गए हैं। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछे जा रहे हैं अजकल एग्जाम के कि फॉर एग्जाम्पल कि मनीष नरवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरा शूटिंग तो बिलोंग करते हैं। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वल। गंगा रिवर वॉज डिक्लेयर्ड एज नैशनल रिवर ऑफ इंडिया ऑन विच डेट। गंगा रिवर नू नैशनल रिवर बनाया गया सी इंडिया की किस दिन? ये बनाया गया सी 4 नवंबर नू, 4 नवंबर 2008। अज 12 साल पूरे हो चुके हैं। नैशनल रिवर ऑफ इंडियाज ऑन 4 नवंबर 2008, ठीक है। क्यों न्यूज़ दे विच आई है कि इस दिन 4 नवंबर से जी लंघ के गई है, यानी कि कल के दिन की होया है, ऑर्गेनाइज की गई गंगा उत्सव 2020 ऑर्गेनाइज किया गया। किन्ना द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अगर गल करिए इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरैक्टर जनरल का नाम याद रखना है, रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी राजीव रंजन मिश्रा नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरैक्टर जनरल ने। और इस द्वारा गंगा उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है कि इसनूं कमैमोरेट करने के लिए गंगा नूं नैशनल रिवर डिक्लेयर करने की तारीख नूं कमैमोरेट करने के लिए 4 नवंबर 2008 नूं अनाउंस की गई सी, ठीक है जी। इस तो इलावा दिन आप डिस्कस कर लेने 1 नवंबर नूं काफ़ी डेज दोबारा अपना फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया गया, जिन्हों के विचों पंजाब का जरूर याद रखना। पंजाब अपनी स्टेट है 1966 के 1966 के पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के डिवाइड कर दिता गया सी। पंजाब और हरियाणा स्टेट बना दिते गए सी और हिमाचल प्रदेश नूं यूटी बना दिता गया सी। जिहड़ी हिमाचल प्रदेश है इसनूं बाद दे विच 1971 दे विच जाके जनवरी 1971 दे विच जाके हिमाचल प्रदेश नूं स्टेट बनाया गया सी, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स याद रखने। नैक्सट है वेयर इज़ द हैडकुआटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इस क्वेश्चन को इस तरीके मैंने फ्रेम करें कि स्टैटिक क्वेश्चन लगे कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कित्थे लोकेटेड है। क्वेश्चन इस तरीके पूछा जा सकता है एज ए स्टैटिक फॉर्म के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जी करंट अफेयर्स की होंगे क्वेश्चन होंगे ने उन्होंने जानबूझ के स्टैटिक के रूप में पूछे जाते, क्योंकि बच्चे की करते हैं करंट अफेयर की सिंपल न्यूज़ याद कर लेंगे ने, मेन जो उसका स्टैटिक फैक्ट्स होंगे ने वो स्किप हो जाते हैं, तो काफ़ी जरूरी होंगे ने। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन न्यूज़ के विच है, तो इसका हैडकुआटर याद होना चाहिए जनेवा के विच, ठीक है। कुछ दिन पहले आप न्यूज़ डिस्कस की थी, आई थिंक परसों डिस्कस की थी कि 2006 मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। कल भी डिस्कस की थी कि 206वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, जिस दे विच इंडिया वालों ओम बिरला इंडिया के लोक सभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। कोटा राजस्थान तो लोक सभा MP ने, ठीक है। मीटिंग के विच की होया, मीटिंग की गई सी इसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए। तो किन्ना नूं अपॉइंट किया गया? आप कल डिस्कस किया सी पुर्तगाल कंट्री के डुएर्ते पैचिको नूं अपॉइंट किया गया चेयरमैन, ठीक है। बेसिकली इन्होंने अगर इलैक्शनस हेल्ड किए जाते होंगे ने तो इलैक्शन के विच किन्ना नूं हराया? पाकिस्तान नूं हराया। पुर्तगाल तो बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन है, करंसी यूरो चलती है। ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने।
इस तो इलावा ये याद रखना है कि 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਟੈਟਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 179 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਡਰਿਡ ਸਪੇਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ COP25 ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਰੂਜ਼ਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੂਜ਼ਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਟੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਬਰੂਜ਼ਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੱਸਣਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ। ਚਲੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਸੋ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਰਸੋ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੋਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਰਕਲੋ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਵੋਰਕਲੋ। ਇੱਥੇ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which bank has been named as world safest bank in the 29th annual rankings of world safest bank released by global finances। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ। ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? DBS ਬੈਂਕ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੇਫੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ KCB ਬੈਂਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। KCB ਬੈਂਕ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ KCB ਬੈਂਕ ਦਾ। ਨਾਇਰੋਬੀ, ਕੇਨੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਇਰੋਬੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਇਰੋਬੀ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ KCB ਬੈਂਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। DBS ਬੈਂਕ ਬੈਸਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ SBI ਰਹੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਘਾਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਘਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, AAI। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ 6 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 3 ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਜਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਪੁਰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮਪੁਰਮ ਔਰ ਗੁਹਾਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਗਲੁਰੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 6 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜੈਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮਪੁਰਮ, ਗੁਹਾਟੀ ਔਰ ਮੈਂਗਲੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਗਰ ਏਅਰਪੋਰਟ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਈਟਰੈਕਸ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਂਗੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅਪॉइंटेड ਐਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੰਪਨੀ ਵੈਲਵਰਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ
ब्रांड एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए ने, कौन अपॉइंट किए गए ने, ये अपॉइंट किए गए ने युवराज सिंह। क्रिकेटर युवराज सिंह नूं वैल वर्स्ड कंपनी का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। ठीक है, न्यूट्रीशन कंपनी है वैल वर्स्ड। इस तो इलावा युवराज सिंह की ही गल करते हैं, युवराज सिंह नूं आकाश इंस्टीट्यूट का भी ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। आकाश इंस्टीट्यूट के ब्रांड एंबेसडर रोबिन थापा एंट्री लोकल जॉब अर्निंग प्लेटफॉर्म के अपॉइंट किए गए सी रोबिन थापा। सौरभ गांगुली नूं अगर आप गल करिए गुडविल एंबेसडर अपॉइंट किया जा, सौरभ गांगुली नूं गुडविल एंबेसडर अपॉइंट किया जा चुका है टोक्यो ओलंपिक्स का। इस तो इलावा सौरभ गांगुली नूं ही ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी सीमेंट का। किहड़े सीमेंट का? सौरभ गांगुली नूं किहड़े सीमेंट का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी? सचिन तेंदुलकर की गल करते हैं पेटीएम फर्स्ट गेम्स दे ब्रांड एंबेसडर की अपॉइंट किए गए सी। रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एंबेसडर, रोहित शर्मा नूं ही एडिडास ओकले कंपनी के ब्रांड एंबेसडर रोहित शर्मा अपॉइंट किए गए सी। रिसेंटली वीगा का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित फॉर राइनो कैंपेन के भी ब्रांड एंबेसडर सीगे रोहित शर्मा। सौरभ गांगुली इस तो इलावा सौरभ गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट ने 39 नंबर के, ये भी याद रखने। ठीक है, अच्छा BCCI द्वारा रिसेंटली वूमेंस T20 चैलेंज अनाउंस किया गया, तीसरा एडिशन कितने हेल्ड किया जाएगा? UAE दुबई दे विच, और टाइटल स्पॉन्सर अपॉइंट किए गए ने जियो। नेक्स्ट है वाटर रिस्क फिल्टर पोर्टल इज़ डेवलप्ड बाय, जिहड़ा वाटर रिस्क फिल्टर पोर्टल है इसनूं किन्ना द्वारा डेवलप किया गया? इसनूं डेवलप किया गया किन्ना द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा। बेसिकली एक पोर्टल जारी किया गया वाटर रिस्क फिल्टर पोर्टल, वर्ल्ड वाइड फंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा इसनूं जारी किया गया। दूसरी चीज़ इस दे नाल ही इन्होंने एक इंडैक्स भी जारी किया, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिस दे विच डिफरेंट सिटीज़ ने, इंडिया की गल करिए 30 ऐसी सिटीज़ सिलैक्ट की गई ने इस द्वारा, जिसने कहा कि इन्होंने 30 सिटीज़ के विच 2050 तो बाद पानी की कमी आ जाएगी। ठीक है, कि ये सिटीज़ वाटर रिस्क ते ने 2050 तक इन्हों के पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन्हों के अगर इस इंडैक्स की गल करते हैं सब तो उपर जयपुर सिटी सी, जयपुर सिटी सब तो उपर सी, सैकेंड नंबर पर इंदौर सी MP की, और तीसरे नंबर पर सी थाने महाराष्ट्र। ठीक है, इस तो इलावा अगर इंडिया की फेमस सिटीज़ की गल करिए वो भी इस लिस्ट के विच ने, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये भी सिटीज़, हैदराबाद हो गया, ये सिटीज़ भी इस लिस्ट के विच ने। ठीक है, 30 ऐसी सिटीज़ दसिया गई ने जिन्हों के 2050 तो बाद पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। ठीक है जी, रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा। इस दे बारे याद रखना है कि जो वर्ल्ड वाइड फंड है इसके जोड़े एंबेसडर ने, इसके एंबेसडर अपॉइंट किए गए विश्वनाथन आनंद, चैस के प्लेयर ने, तुहानूं याद होएगा चैस लैजेंड के नाम तो जाने जाते हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अच्छा इन्हों की एक बुक है, विश्वनाथन आनंद की एक बुक है, कमेंट बॉक्स के बुक का नाम दसना है, काफ़ी इंपोर्टेंट बुक है विश्वनाथन आनंद की। इस तो इलावा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की गल करिए, कोलोगनी स्विट्जरलैंड के हैडकुआटर है, 1971 के बनाया गया सी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 51st मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी है, हर साल मीटिंग देवोस के ऑर्गेनाइज की जाती है, इस साल लुसरने के हेल्ड की जाएगी। ठीक है, दोनों सिटीज़ स्विट्जरलैंड के ने। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गल करते हैं, ILO जनेवा के इसका भी हैडकुआटर, और ILO की गल करते हैं 35 साल बाद इंडिया इसका प्रेसिडेंट बनया अपूर्व चंद्र, इंडिया के जोड़े सैक्रटरी ने लेबर एंपलॉयमेंट सैक्रटरी, उन्होंने हैड अपॉइंट किया गया ILO के। नीति आयोग की गल करते हैं, नीति आयोग 2015 के बनाया गया सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके हैड होंगे ने। वाइस चेयरमैन की गल करिए राजीव कुमार, और इस तो इलावा अमिताभ कांत का नाम याद रखना है, CEO ने नीति आयोग के। जल शक्ति मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत लवे है जल शक्ति मिनिस्ट्री, जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP। नेक्स्ट है विच प्लेटफॉर्म लॉन्च आर्ट हाउस टू कीप ब्रांड्स क्रिएट बेटर कंटेंट। बेसिकली
डिफरेंट ब्रांड्स ने ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਗੋ ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹਾਊਸ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਟ ਹਾਊਸ। ठीक है, याद रखना बेसिकली ब्रांड्स ਨੂੰ डिफरेंट क्रिएटिव कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च किया गया ट्विटर इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड ब्रांड एंबेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप। जो सिस्का ग्रुप है, सिस्का ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर नवे अपॉइंट किए गए हैं। कौन अपॉइंट किए गए हैं? राजकुमार राव। राजकुमार राव की गल करते हैं, एक्टर ने इन्हों सिस्का ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। ठीक है, किन्हों के अपॉइंट किए गए हैं? ब्रांड एंबेसडर सिस्का ग्रुप के। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शनस की, तो अमिताभ बच्चन को एलैक्सा द्वारा ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। बेसिकली वॉइस चैटबोट है जोड़ा एलैक्सा एमेजोन का, उसके लिए आवाज़ के लिए सिलेक्ट किया गया सी अमिताभ बच्चन ही रिसेंट IDFC फर्स्ट बैंक के भी ब्रांड एंबेसडर ने अमिताभ बच्चन ही बेसिकली अगर आप गल करिए RBI द्वारा ट्विटर कैंपेन सीगा, उसके लिए ब्रांड एंबेसडर, उसके लिए फेस चुनिया गया सी, ट्विटर के उत्ते लॉन्च किया सी RBI द्वारा। इस तो इलावा RBI द्वारा डिजिटल कैंपेन भी लॉन्च किया गया, उसके लिए भी फेस अमिताभ बच्चन को चूज किया गया। सोनू सूद को गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। इस तो इलावा रिसेंटली एक होर ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी सोनू सूद, मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है, चलो कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना सोनू सूद। इस तो इलावा इन्होंने रिसेंटली SDG अवार्ड भी दिता गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल द्वारा अवार्ड दिता गया सोनू सूद को। ठीक है जी, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिता गया, याद रखने। आमिर खान रिसेंटली वेंदातू के ब्रांड एंबेसडर। इस तो इलावा सीएट टायर्स के भी ब्रांड एंबेसडर आमिर खान अपॉइंट किए गए हैं। सलमान खान रियलमी मोबाइल फोन के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट है रूपसी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रूपसी एयरपोर्ट किहड़ी स्टेट दे विच है? क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म के इसे करके पूछे जाते, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स होंगे ने इस तरीके पूछ लिया जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कि यह स्टैटिक के विचों आया, आपको स्टैटिक याद करने की जरूरत है। स्टैटिक ईजिली याद हो जाएगा अगर करंट अफेयर आपको अच्छे तरीके याद नहीं, क्योंकि क्वेश्चन डायरैक्ट स्टैटिक चो कदे भी नहीं पूछा जाता। इस तरीके का स्टैटिक GK है जी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, क्वेश्चन कितों भी पूछा जा सकता है, पर क्वेश्चन हमेशा जी करंट अफेयर के स्टैटिक होंगी है, लुकी कह सकते हैं कि लुकिया हुई खबर होंगे ने, जी आप पंजाबी के अगर डूंगी पंजाबी की गल करिए तो जी लुकिया हुई खबर होंगे ने ना, उत्थों स्टैटिक करते हैं, उत्थों क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरीके पूछा जाएगा कि रूपसी एयरपोर्ट कित्थे है, न्यूज़ के विच है रूपसी एयरपोर्ट, इस करके पूछा गया है असम के विच है। ठीक है, असम के विच है रूपसी एयरपोर्ट। क्यों इंपोर्टेंट है? अनाउंस किया गया कि जो रूपसी एयरपोर्ट है ये अपने ऑपरेशन शुरू करेगा रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम के अंडर, जी आप डिस्कस की थी कि उड़े देश का आम नागरिक, उस तरीके की स्कीम है रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम, कि रीजनल जगह ने जड़ियाँ इंडिया के ही छोटिया जगह ने उन्होंने कनैक्ट किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट अपने ऑपरेशन शुरू करेगा जनवरी 2021 तो। असम के विच है, याद रखना। ठीक है, सिमिलर तरीके जिस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेवर एयरपोर्ट कित्थे है, जेवर एयरपोर्ट कित्थे है? यूपी के विच है जेवर एयरपोर्ट, जिसनों स्विट्जरलैंड के जुरीच एयरपोर्ट की हैल्प के नाल बनाया जा रहा है। ठीक है, और जुरीच एयरपोर्ट ही इसकी फंक्शनिंग भी करेगा अगले कुछ सालों के लिए। ठीक है, सिमिलर तरीके एक एयरपोर्ट अपने 2 दिन पहले डिस्कस किया सी, उत्तराखंड का सीगा, उत्तराखंड का सी जोली ग्रांट एयरपोर्ट सीगा जिहड़ा उत्तराखंड के विच सीगा, जिस करके जिहड़ी उत्थे टाइगर रिजर्व सीगी उसदे उत्ते असर हो रहा सीगा। तो क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाएगा जोली ग्रांट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आंसर होएगा उत्तराखंड। एक अरुणाचल प्रदेश का सीगा जिहड़ा रिसेंटली शुरू किया जाना सी, अरुणाचल प्रदेश का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सी अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इस तरीके जोड़े एयरपोर्ट्स ने याद रखने ने। पुडीचेरी एयरपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ के विच सीगा, पुडीचेरी एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन वांग भी पूछा जाएगा, क्योंकि इत्थे न्यूज़ नहीं बनाई जा सकती। स्टैटिक दे विच पूछा जाएगा कि केड़ा एयरपोर्ट 100% सोलर पावर के उत्ते वर्क करने वाला बने, तो अपना आंसर होगा पौंडीचेरी एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखने ने सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के आप 5 डिफरेंट न्यूज़ डिस्कस करते होंगे हैं, और 5 न्यूज़ ऐसी होंगे ने जिन्हों के पूछे जाने 100% चांसिस होंगे। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस।
विद थीम एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। इंडेक्स इंडेक्स नहीं कह सकते, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। बेसिकली कोविड-19 के करके इस मीटिंग नू वर्चुअल बेस पर ही लॉन्च किया जाएगा। थीम रहेगी, थीम इंपोर्टेंट बनेगी, एडिशन इंपोर्टेंट बनेगा। 13th मीटिंग है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। केड़ी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो कि हरदीप सिंह पुरी दे लवे है। हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने राज्य सभा MP ने यूपी तो। इस तो इलावा इन्होंने लवे इंपोर्टेंट एक होर मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है हरदीप सिंह पुरी दे लवे। एजुकेशन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशांक दे लवे है हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की गल करते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल दे लवे है। पीयूष गोयल राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। इस तो इलावा होर भी काफ़ी मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं पीयूष गोयल। गल करिए अगर आप रेलवे मिनिस्ट्री की, पीयूष गोयल दे लवे है। इस तो इलावा पीयूष गोयल की गल करते हैं, रिसेंटली इन्होंने 2 मिनिस्ट्रियां होर दित्तियां गईयां ने, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की गल करते हैं तो RK सिंह दे लवे है। RK सिंह न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने, प्लस पावर मिनिस्ट्री है और आरा बिहार तो लोक सभा MP ने RK सिंह। MSME मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री जी नितिन गडकरी दे लवे है। इस तो इलावा इन्होंने लवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है MSME लवे और नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन केरला's हाईएस्ट ऑनर JC डैनियल अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा के फील्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए केरला का हाईएस्ट ऑनर JC डैनियल अवार्ड। अच्छा, केरला का ही ऑनर आप रिसेंटली डिस्कस किया कि सूँ याद है पॉल ज़चारिया नाम से शायद केरला का ही एक ऑनर दिता गया सी उन्होंने, वो सीगा हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर और लिटरेचर के फील्ड के पॉल ज़चारिया हुण सिनेमा के फील्ड के JC डैनियल अवार्ड है। सिनेमा के फील्ड के JC डैनियल अवार्ड है, ये दिता गया हरिहरन मलयालम मूवी डायरैक्टर ने। हरिहरन इन्हों की दिता गया JC डैनियल अवार्ड दिता गया। ठीक है जी। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की गल करिए रिसेंटली न्यूज़ के रहे ने, डिस्कस कर लेने। सब तो पहले सुशांता कार डॉक्टर ने। सुशांता कार बेसिकली CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च के साइंटिस्ट ने। इन्हों अवार्ड दिता गया प्रोफैसर AN बहादुरी मैमोरियल लेक्चर अवार्ड, प्रोफैसर AN बहादुरी मैमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 किन्ना ने दिते है? डॉक्टर सुशांता कार ने, साइंटिस्ट ने, इंडियन ने। नेक्स्ट है राजीव जलोटा नूं चेयरमैन अपॉइंट किया गया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का। जिस तरीके कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के उत्ते। ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेंज किया सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के उत्ते और इन्हों के नाम से एक मैमोरीयल स्टैंप भी उस टाइम जारी की गई सी। इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी सी, एडिशन नहीं मेरे याद किन्नवें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सी, पर इंपोर्टेंट रहेगी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सिमिलर ही याद रखना है। राजीव जलोटा चेयरमैन अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन है जी ब्रुसल्स बेल्जियम के इसका हैडकुआटर है। ब्रुसल्स बेल्जियम के इसका हैडकुआटर है इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन का। इस जोड़े इंडिया की डायरी के लिए अथॉरिटी है NDDB नैशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड है जोड़ा इंडिया का है। इसके जोड़े चेयरमैन ने दिलीप रथ, इन्हों उस IDF के बोर्ड के मैंबर अपॉइंट किया गया। ठीक है, इन्होंने बोर्ड मैंबर की जी टीम होंगी है उस इलैक्ट किए गए हैं NDDB के चेयरमैन दिलीप रथ। नेक्स्ट है लेजेंडरी वायलिनिस्ट TN कृष्णन पास्ट अवे। वैसे अपन ओबीचरीज काफ़ी ज़्यादा घट डिस्कस करते हैं क्योंकि ओबीचरीज के क्वेश्चन पूछे जाने का काफ़ी रेयर चांस होंगे, बहुत घट एग्जाम होंगे ने पंजाब लैवल की। अगर आप गल करिए कि ओबीचरीज के क्वेश्चन पूछा जाए। TN कृष्णन का नाम इस करके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कल कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि TN कृष्णन रिसेंटली डैथ हुई इन्हों की
ਵਾਇਲਨਿਸਟ ਨੇ TN ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਓਨਰ ਹੈ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਓਨਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਸਟ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਓਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ, ਸੌਰੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਥਾ ਹੈ ਔਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੀਸਰਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਓਨਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਓਨਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ IIT, ਕਿਹੜੀ IIT ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ IIT ਦੁਆਰਾ ਗੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੁਆਰਾ, IIT ਮਦਰਾਸ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ, ਤਾਂ BEAG IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। IIT ਰੋਪੜ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਬੋਟ ਰੋਬੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। IIT ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੋਰੋਸ਼ੋਰ ਕਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਰੋਸ਼ੋਰ ਕਿਟ। ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ। IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਬੋਟਿਕਸ ਰੋਬੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ। IIT ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ RAM ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਂਡਮ ਅਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। IIT ਮਦਰਾਸ NDRF ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। IIT ਮਦਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡੀਕੈਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, IIT ਮਦਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕੈਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ PS, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ PPS ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ PCS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ EWS ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 103rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, 103ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ EWS ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ PSC ਦੁਆਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸਮ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ NTPC ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ NTPC ਹੈ ਔਰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 100% ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਫॉर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स।
ठीक है। पंजाब ने जिहड़ा कीता सी 100% टैक्स माफ़ किया है, वो हर सिंपल व्हीकल्स से किया सी, पर इन्होंने तमिलनाडु ने की किया है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स से, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स से 100% एग्जम्पशन की है। सिमिलरली दिल्ली द्वारा भी किया गया सी टैक्स माफ किया रखने। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा आशा पे एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिस आप रिसेंटली डिस्कस की सी मूह पे याद है किसी को कि मूह पे किहड़ी IIT द्वारा बनाई गई सी? मूह पे जी एप्लीकेशन राजस्थान के लिए बनाई गई सी, एक IIT द्वारा बनाई गई सी। कमेंट बॉक्स में दसने किहड़ी IIT द्वारा, ठीक है। तो आशा पे एप्लीकेशन हरियाणा के लिए बनाई गई है, आशा वर्कर्स के लिए, आशा वर्कर्स को पेमेंट टाइमली प्रोवाइड करवाने के लिए आशा पे एप्लीकेशन हरियाणा द्वारा। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।